یہ سالہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ منڈی پہنچتے ہی گاڑی سے باہر نکلتا عظیم شاہ اپنے چہرے پہ ماسک چڑھاتا دور کھڑے حاجی خان کو دیکھتے دانت پیس کے زریر شاہ سے استفسار کرنے لگا۔ تمیز سیکھ کچھ، ورنہ تمہاری رخصتی تا قیامت نہیں ہونے دینی اس نے۔ زریر شاہ اپنی طرف سے باہر نکلتے ہوئے اسے آنکھیں دکھا کے جواب دے رہا تھا۔ وہ چاروں اپنے چہروں پہ ماسک چڑھا چکے تھے کیونکہ یہاں کافی ڈسٹ تھی۔ اسے یہاں تم نے بلایا ہے؟ عظیم شاہ کی بات سنتے احان شاہ کی نگاہیں بھی حاجی خان کی طرف اٹھی تھی، جس پہ وہ ایک نظر زریر شاہ کی طرف دیکھتا سر جھٹک کے استفسار کرنے لگا۔ ہاں ہم نے بلایا ہے، کیا تکلیف ہو رہی ہے تم دونوں کو؟ کاظم شاہ ان دونوں کو جھاڑ پلاتا دور کھڑے حاجی خان کی طرف بڑھا تھا، جو اس وقت بلیک جینز پہ بلیک ٹی شرٹ پہنے سر پہ بلیک ہی پی کیپ پہنے ہوئے تھا۔ خوبصورت چہرہ بلیک ماسک سے چھپا ہوا تھا، لیکن اس خوبصورت نیلی آنکھیں اسے پہچاننے کے لیے کافی تھے۔ وہ دونوں جواب دینے کے بجائے ناگواری سے سر جھٹکتے ان کے ساتھ ہی حاجی خان کی طرف بڑھے تھے۔ ایک کو بیوی کی معصومیت ختم ہونے کی وجہ سے اس پہ غصہ تھا تو دوسری کو بیوی سے دوری پہ۔ وہ اس کے قریب آتے اس کے بغل گیر ہوتے حال احوال پوچھ رہا تھا، جب عظیم شاہ اس سے ملنے کے بجائے نگاہیں گھماتا ہوا یہاں وہاں جانوروں کی طرف دیکھتے اچانک سے ہولے سے ہنسا۔ اس کے مدھم آواز میں ہنسنے پہ ان چاروں نے چونکتے ہوئے اس کی طرف دیکھا تھا۔ بھیگے ہونٹ تیرے پیاسا دل میرا، لگے ابر سا مجھے تن تیرا۔ عظیم شاہ کو بائیں سائڈ پہ جانوروں کی طرف دیکھ کے ہنستے ہوئے یہ گانا گنگناتے دیکھ کے سب کی نظریں اس کے تعاقب میں اٹھی تھیں۔ سامنے کا منظر دیکھ کے سب کی آنکھیں ایک پل کے لیے پھیلی تھی، جبکہ حاجی خان کا ماسک میں چھپا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ سامنے اونٹ اور اونٹنی کی ایک جوڑی رومانس کرنے میں مصروف تھی، جسے خصوصی طور پہ اس کے بے شرم بہنوئی نے عمران ہاشمی کا یہ بے شرم ہی گانا گنگنانا خود پہ فرض سمجھا تھا۔ شرم کر لے کچھ اور اگلے لیرکس بول۔ زریر شاہ بے باکی سے بولتا اسے انوکھے انداز میں شرم دلا رہا تھا۔ احان شاہ، کاظم شاہ اور حاجی خان نے دانت پیستے ہوئے ان دونوں کی طرف دیکھا تھا، جنہوں نے منڈی میں قدم رکھتے ہی اپنی اوقات دکھانا شروع کر دی تھی۔ کبھی میرے ساتھ کوئی رات۔ ابھی عظیم شاہ جان بوجھ کے ان لیرکس کا چناؤ کرتا مزید گنگناتا جب احان شاہ اور کاظم شاہ نے گلا کھنکارتے ہوئے اسے حاجی خان کی موجودگی کا احساس دلایا تھا۔ عظیم شاہ گنگنانا بند کر کے رخ موڑ کے حاجی خان کی طرف دیکھنے لگا، جو اسے شدید غصے سے اپنی نیلی آنکھوں سے گھور کے دیکھ رہا تھا۔ عظیم شاہ نے نچلا لب دانتوں تلے دبایا تھا، جبکہ زریر شاہ کا کہکا دبانا محال ہو رہا تھا۔ آئی تھنک ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، یا اگر دل نہیں بھر رہا تو تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ یہ منظر ریکریٹ کر سکتے ہو۔ کاظم شاہ ان دونوں کو آنکھیں دکھا کے سنجیدگی سے بے باک مشوروں سے نوازتا آگے کی طرف بڑھ چکا تھا۔ چھی چھی! زریر شاہ اور عظیم شاہ چہرے کے زاویے بگاڑتے جلدی سے ایک دوسرے سے فاصلے پہ ہوئے تھے۔ حاجی خان اور احان شاہ کا نہ چاہتے ہوئے بھی کہکا بلند ہوا تھا۔ شاہ حویلی کا وسیع و عریض لان اس وقت منی منڈی سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ پورا لان طرح طرح کے قربانی کے جانوروں سے بھرا پڑا تھا۔ حویلی کے تمام مرد حضرات لان میں کھڑے قربانی کے جانوروں پہ تبصرے کر رہے تھے۔ ماشاءاللہ تمام جانور ہی چن کے لائے ہو، اللہ ہم سب کی قربانی قبول فرمائے۔ عادل شاہ ان تمام خوبصورت بکروں اور لمبے چوڑے جانوروں کو دیکھتے خوشی سے مسکراتے ہوئے بولے، آمین۔ سب نے یک زبان ہوتے ہوئے بلند آواز میں آمین دہرایا۔ سب کو بلوا لیں، قربانی کے جانور دیکھ لیں، پھر ان سب کو حویلی کی بیک سائڈ پہ بھجوانا ہے۔ کاظم شاہ بھی نارمل انداز میں ان سب سے مخاطب ہوا تھا۔ جب میرال شاہ اور مرحا شاہ حویلی کی باقی تمام خواتین کو لیے لان میں داخل ہوئیں، سب کی زبان سے بے ساختہ ماشاءاللہ ادا ہوا تھا، جبکہ ایزل شاہ اور گلالی بڑے بڑے اونٹ اور بیل دیکھتی ڈرتے ہوئے کتنے ہی قدم پیچھے کی طرف لے چکی تھیں۔ ایزل شاہ کو جانوروں میں صرف بکرے پسند تھے، وہ ان سے بالکل نہیں ڈرتی تھی، اور اسی لیے کاظم شاہ نے زیادہ تعداد میں ہر رنگ نسل کا بکرا خریدا تھا۔ ایزل شاہ کو ڈرتے دیکھ کے کاظم شاہ نے اسے اپنے قریب آنے کے اشارہ کیا، جس پہ وہ اس کے قریب موجود بیلوں کو دیکھتی ڈر کے نفی میں سر ہلا گئی۔ کاظم شاہ نے ایک درمیانے سائز کا خوبصورت سا سفید بکرا اپنے قریب کرتے ایزل شاہ کی طرف مسکراہٹ اچھالی تھی۔ اب وہ بیلوں سے کافی فاصلے پہ آ چکا تھا۔ ایزل شاہ اپنے بازوں میں موجود ازمیر شاہ کو دیکھ کے کھلکھلاتی ہوئی کاظم شاہ کی طرف بڑھی تھی۔ یہ سویا نہیں ابھی تک؟ کاظم شاہ اس کے بازوں سے کھلکھلاتے ہوئے ازمیر شاہ کو اٹھاتا مدھم آواز میں ایزل شاہ سے مخاطب ہوا تھا۔ رات کے 3 بج رہے تھے اور اس کا چھوٹا سا سپوت ابھی تک کیوں جاگ رہا تھا جیسے دن کا وقت ہو۔ وہ سب قربانی خریدتے لیٹ ہو چکے تھے، کیونکہ انہیں زیادہ تعداد میں جانور خریدنے تھے۔ سب پہ قربانی فرض تھی، وہ سب اپنی حیثیت کے لحاظ سے دل کھول کے قربانی خریدا کرتے تھے۔ یہ ہم سب کے ساتھ قربانی کے جانوروں کا انتظار کر رہا تھا، وہ چہک کے جواب دیتی اب بکرے کے پاس بیٹھ کے اسے پیار کر رہی تھی۔ لالا، یہ سب بہت خوبصورت جانور ہیں، لیکن مجھے ان سے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ ظاہرہ خان ان تمام جانوروں کو دور دور سے دیکھتی معصومیت سے حاجی خان سے مخاطب تھی، جو اسے اپنی قربانی دکھانے کے لیے یہاں باہر گیراج کے پاس لے کے آیا تھا۔ وہ بھی قربانی کے جانور دیکھنے کے لیے دیر تک جاگ رہی تھی۔ ہاں، تم اس وقت مجھے
जुरेज की कॉपी लग रही हो, वो भी जानवरों के करीब से देखने से यूं ही डरता है। हाजी खान हंसते हुए अपने जानवरों को हाथ से सहलाता उन्हें प्यार कर रहा था। उसने 2 ऊंट, 3 बैल और 6 खूबसूरत से बकरे खरीदे थे। लाला यहाँ पे आ जाइए, मारेंगे आपको। उसे जानवरों के इतने करीब देख के जायशा खान मासूमियत और परेशानी के मिले जुले तासुरात से बोली थी। उसे अपने लाला की फिक्र हुई थी। वो हंसता हुआ उसकी तरफ बढ़ते हुए उसे अपने बाजू के हसार में लिए फिर से जानवरों के पास आ रहा था और वो डरती हुई उसमें छुप रही थी। कुछ भी नहीं होगा गुड़िया, ये जानवर बहुत मासूम होते हैं, इनसे जितना प्यार करोगे उतना ही हमें प्यार लौटाने की कोशिश करते हैं, बहुत वफादार होते हैं। वो मुस्कुरा के बोलता, उसका डर खत्म करते उसका हाथ अपने हाथ में थामते हुए होले होले से सफ़ेद बड़े से बैल पे फेरता आहिस्ता आहिस्ता उसका डर कम करने की कोशिश कर रहा था। जायशा खान अंदर से तो बहुत डर रही थी, लेकिन जिस तरह से हाजी खान उसका डर उतार रहा था वो कुछ ही देर में रिलैक्स होती हंसते खिलखिलाते हुए बकरों के साथ खेलने लगी। कितना अच्छा होता ना हमारे साथ गुल भी होती, वो बकरों के साथ खेलती हसरत से बोली थी। राइट, मैं उसे सुबह कुछ देर के लिए ले आऊँगा। हाजी खान मुस्कुरा के उसे जवाब देता अब उन जानवरों को अपने हाथों से चारा डाल रहा था। गुलाली के जाने से वो काफ़ी उदास था, वो उसके साथ काफ़ी अटैच हो चुका था, लेकिन एक ना एक दिन तो उसे उससे दूर होना ही था। मीरू, रात के 3:30 बज रहे थे जब हाजी खान ने ना चाहते हुए भी मिराल शाह को आज काफ़ी दिनों बाद मैसेज कर डाला। अहान शाह की तबीयत खराबी के बाइस उसकी और मिराल शाह की मुलाकात सिर्फ 1 से 2 दफ़ा ही हॉस्पिटल में हुई थी। उसके बाद से वो आज उसे मैसेज कर रहा था। वो काफ़ी बेसुकून सा था, उसका दिल चाह रहा था उससे बात करके अपना दिल कुछ हल्का कर ले। मिराल शाह मैसेज सीन कर चुकी थी, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया था। आज कुर्बानी के जानवर खरीद के लाया हूँ, देखोगी? उसकी तरफ से खामोशी पाके हाजी खान ने अपनी असली मासूमियत से मैसेज लिखा था। उसने फिर से मैसेज सेंड करके जवाब नहीं दिया तो वो खुद ही उसे अपने तमाम जानवरों की तस्वीर सेंड करने लगा। दूसरी तरफ मिराल शाह जो उसे भरम दिखाने के लिए इग्नोर कर रही थी, उसके इस कदर खूबसूरत जानवर देखती वो बेसाख्ता मुस्कुराई थी। वो ना चाहते हुए भी जवाबन माशाल्लाह लिखती उसे मैसेज सेंड कर गई। मीरू, हाजी खान के दिल में न जाने क्या समाई जो फिर से उसे ये दिल फरेब सा मैसेज लिख गया। वो जब भी उसका नाम लेके यूं मैसेज करता था, मिराल शाह की धड़कनें उसे अपने कानों में बुनती महसूस होती थीं। उसने ढीठ बनते हुए फिर से कोई रिप्लाई नहीं लिखा। मीरू, आई एम सो सॉरी। फॉर व्हाट? फॉर एवरी सिंगल थिंग। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें अपनी पहली मुलाकात से लेके अब तक बहुत हर्ट किया, अपने अल्फाज से अपने एक्शन से तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है, लेकिन तुम हमेशा अपनी दुखी साइड शो करने के बजाय उसे अपने गुस्से के लबादे में छुपा लेती हो। मैं आज तक किसी बात पे इतना नहीं पछताया जितना तुम्हारी सालगिरह वाले रोज़ तुम्हें थप्पड़ मारने पे पछताया था। मैं ऐसा नहीं हूँ मिराल, मैंने आज तक किसी लड़की को थप्पड़ मारना तो दूर आवाज़ भी बुलंद नहीं की थी, लेकिन उस रोज़ जब तुमने मेरी माँ की तरबियत पे बात की, मेरे दिमाग में वो पल लहराया था जब बचपन में बाजार की उस भीड़ में मेरी माँ से मेरा हाथ जुदा हुआ था, जब वो मेरे लिए बिलक बिलक के रोई थी। मैं उस वक्त खुद पर से काबू खोता ज़िंदगी में पहली और आखिरी बार तुम पे हाथ उठा गया। आई एम सो सॉरी, प्लीज़, मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। मैंने तुम्हें आज तक अपने अल्फाज से जितना भी हर्ट किया वो दिल से बिल्कुल भी नहीं किया। मैं जानता हूँ तुम भी अंदर से बाकी लड़कियों की तरह हो, लेकिन हर किसी के सामने अपना आप जाहिर नहीं करती। मैं जानता हूँ मेरी बहन को शाह हवेली से निकलवाने में तुम्हारा हाथ नहीं था, मैं सब जानता हूँ। प्लीज़ मुझे मेरे तमाम अल्फाज के लिए माफ़ कर दो मीरू। मैं बहुत बेसुकून रहता हूँ, तुम्हें हर्ट किया है तो सुकून में कैसे रह सकता हूँ। मैंने उस रोज़ अपनी बातों में जानबूझ के अहान शाह का जिक्र तुम्हारे एक्स फियांसी के तौर पे किया था। मैं बता नहीं सकता उस रोज़ मेरे अपने अल्फाज से मेरा किस कदर दिल जला था, लेकिन मुझे ये सब उस वक्त ज़रूरी लगा था ताकि तुम मुझे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना शुरू ना कर दो, क्योंकि इस वक्त हालात ने ये सब करने पे मजबूर किया था। इसीलिए खुद को तुम्हारी आदत नहीं डाली, लेकिन तुम तो एक आदत हो गई और पता नहीं चला। तुम मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो चुकी हो मीरू। हम जब फेस टू फेस मिलते हैं मुझे समझ नहीं आता किस तरह से बात का आगाज़ करूं, क्योंकि मैं ऐसा ही हूँ। लेकिन अगर तुम मुझे माफ़ करती हो तो मैं अपनी आदत चेंज भी कर सकता हूँ। जो बातें मैं इस वक्त मैसेज में लिख रहा हूँ मैं फेस टू फेस तुम्हारे सामने दोहरा के तुमसे फिर से माफ़ी मांगने को भी तैयार हूँ। लेकिन प्लीज़ मेरी तरफ से अपना दिल साफ कर लो। आज बहुत हिम्मत करके तुम्हें ये मैसेज लिखा है जो मैं हमेशा से लिखना चाहता था। हाजी खान ने अपने दिल की तमाम तर बातें उस एक मैसेज में लिखते हुए मिराल शाह को सेंड किया था। उसे मैसेज सेंड करते ही वो अपने धड़कते दिल पे हाथ रखता उसके रिप्लाई का इंतज़ार करने लगा। दूसरी तरफ मिराल शाह जो उसका इतना लंबा मैसेज देखती पहले तो हैरान हुई थी, लेकिन फिर उसका मैसेज पढ़ते आंसू चिड़ियों की मानित उसकी आंखों से फिसलते उसके आरज़ों पे गिर रहे थे। वो उसका मैसेज गायब दिमागी से न जाने कितनी बार पढ़ चुकी थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो कभी अपनी गलतियों का अजाला यूं भी करेगा। वो तो समझती थी वो उसे एक अच्छी लड़की नहीं समझता, उसे शायद उससे अजीब सी चिढ़ है क्योंकि वो बाकी लड़कियों जैसी नहीं है। लेकिन वो तो इतना भी जानता था कि मिराल शाह का दिल भी दुखता है, वो भी दूसरी लड़कियों से दिल रखती थी।
وہ اس کا میسج کئی بار پڑھ کے اس کا جواب دیے بنا آف لائن ہو چکی تھی اور وہ اس کے رپلائی کا انتظار کرتا، اس کے پرانے میسج پڑھتے، نہ جانے کب سویا تھا اسے معلوم بھی نہیں ہوا تھا۔ ظاہشہ خان کے مطابق آج چاند رات تھی، اسے لگ رہا تھا وہ آج تو اسے میسج کرے گا، لیکن وہ غلط تھی، اس کا ایک بھی میسج اسے موصول نہیں ہوا۔ وہ کب سے اپنے ہاتھ میں فون تھامے اس کی چیٹ کھولتے اس کی واٹس ایپ کی ڈی پی دیکھ رہی تھی۔ اس تصویر میں وہ گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا، سگریٹ کا دھواں منہ سے نکالے، ایک ہاتھ گاڑی کے شیشے سے باہر نکالے ہوئے تھا جبکہ دوسرا ہاتھ سٹیئرنگ پہ تھا۔ شہد رنگ بال ماتھے پہ بے ترتیب تھے، چہرے کے تاثرات سنجیدہ جبکہ شہد رنگ آنکھیں سرخی مائل تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ تصویر اچانک لی گئی ہو۔ وہ کسی دیوانے کی طرح اس کی تصویر بار بار زوم کر کے دیکھ رہی تھی۔ وہ آن لائن تھا لیکن اسے میسج نہیں کر رہا تھا، وہ جانتی تھی وہ اس سے ناراض ہے لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ اسے کیسے منائے، وہ اتنی آسانی سے کب مانتا تھا۔ اسے منانے کے لیے تو ہر کسی کو پاپڑ بیلنے پڑتے تھے۔ چاند رات مبارک، ظاہشہ اس کی ناراضگی دور کرنے کی غرض سے ایک چھوٹا سا میسج لکھتی عظیم شاہ کو سینڈ کر گئی۔ کل عید تھی اور وہ نہیں چاہتی تھی ان کی عید ناراضگی کی نظر ہو جائے۔ جیسے اس نے میسج بھیجا تھا وہ آف لائن ہو چکا تھا۔ ظاہشہ خان اپنا نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبائے اپنے آنسو روکتی فون بند کر کے سائڈ ٹیبل پہ رکھی۔ چاند 8 روز پہلے نکل آیا تھا تو اس حساب سے چاند رات گزر چکی ہے۔ کوئی آدھے گھنٹے بعد ظاہشہ خان کے فون پہ بیپ ہوئی تھی جس پہ وہ فٹافٹ فون اٹھا کے واٹس ایپ آن کرنے لگی۔ اس کا میسج دیکھتے ہی ظاہشہ خان کو اپنی بے وقوفی کا اندازہ ہوا جس پہ وہ اپنی زبان دانتوں تلے دبا گئی۔ البتہ اس کا رپلائی دیکھ کے وہ خوش ہوئی تھی، ورنہ اسے لگ رہا تھا وہ اپنی ناراضگی میں اس کے میسج کا جواب بھی نہیں دے گا۔ اوہ میں بھول گئی تھی۔ ظاہشہ خان ایک مختصر سا رپلائی دیتی، ساتھ ایک معصوم سا ایموجی بھی سینڈ کر کے عظیم شاہ میسج سین کر چکا تھا لیکن اس نے رپلائی دینا ضروری نہیں سمجھا۔ وہ اپنے ہاتھ میں فون پکڑے کتنی دیر اس کے رپلائی کا انتظار کرتی رہی لیکن وہ آف لائن ہو چکا تھا۔ وہ کبھی بھی اس کا میسج سین پہ نہیں چھوڑتا تھا۔ آج اس کی اس حرکت پہ ظاہشہ خان کی آنکھوں میں آنسو چمکے تھے۔ آپ بزی ہیں شاید، فی امان اللہ۔ وہ اپنی آنکھوں کو رگڑ کے صاف کرتی، نہ جانے کیوں ایک دفعہ پھر اسے مختصر سا میسج سینڈ کر گئی جس پہ عظیم شاہ نے رپلائی دینے کے بجائے صرف انگوٹھے والا ایموجی کا ریئیکٹ کیا تھا۔ ظاہشہ خان اس کی اگنورنس پہ اپنا چاہتے ہوئے بھی بچوں کی طرح رونا شروع کر چکی تھی۔ میرال شاہ جو اپنے دوستوں کی طرف سے پارسل کیے گئے تمام تحفوں کو کھول کھول کے دیکھتی مسکرا رہی تھی۔ اچانک سے ایک سائڈ پہ پڑی پھول کی ٹوکریوں کے ساتھ گجرے، جیولری، کپڑوں، جوتے کے ساتھ ساتھ پھولوں اور پیسوں کے گلدستے دیکھتی وہ حیران سی ہوئی تھی کیونکہ باقی سب دوستوں نے ایک ہی پارسل میں یا درمیانی سائز کی ٹوکریوں میں اس کے لیے عید کے گفٹس بھیجے تھے، لیکن یہ سب کچھ الگ سے رکھا گیا، الگ ہی دکھ رہا تھا۔ وہ باقی سب تحفے چھوڑ کے تجسس سے ان تمام تحفوں کو دیکھنے لگی جو کسی ایک ہی بندے کے بھیجے گئے لگ رہے تھے کیونکہ سب پہ ایک جیسی پیکنگ اور ریبن باندھے گئے تھے۔ وہ ان سب میں سے کوئی کارڈ یا چھوٹی سی پرچی تلاش کرنے لگی جس پہ پتہ لگایا جا سکے یہ تحفے کس نے بھیجے ہیں۔ بالآخر بہت مشقت کے بعد اسے پھولوں کے گلدستے کے اندر کارڈ، ایک بڑا سا عید مبارک کا کارڈ ملا جسے وہ باہر نکال کے آئیبرو چکا کے پڑھنے لگی۔ میں نے کبھی کسی لڑکی کے لیے تحفہ نہیں خریدا میرو، آج پہلی دفعہ یہ سب خریدا ہے اور صرف تمہارے لیے خریدا ہے۔ مجھے اپنے دل کی باتیں الفاظ میں لکھنی نہیں آتی، صرف اتنا چاہتا ہوں تم اس عید پہ یہ سب پہنو۔ I think I am really bad at romantic talks۔ میں تمہیں اور خود کو نامحرم رشتے کی ڈور میں زیادہ الجھانا نہیں چاہتا، صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، ذات درازم میناکم، من جانب تمہارا نقلی میجر۔ اس کارڈ کو پڑھتے ہوئے میرال شاہ کی بھوری کانچ سی آنکھیں حیرانگی سے پھیلی تھی۔ اس کا یہ انداز سب سے الگ تھا، اس نے آج سے پہلے کب اتنا فری ہوتے ہوئے اسے یوں تحفے بھیجے تھے۔ وہ اس کارڈ پہ لکھے گئے یہ تمام الفاظ ہضم کرنے کی کوشش کرتی، اس کارڈ پہ پشتو زبان میں لکھے گئے اس چھوٹے سے جملے کا مطلب سمجھنے کی کوشش کرنے لگی۔ جب بہت ٹائم لگا کے بھی اس جملے کا مطلب سمجھ نہیں پائی تو اسے ظاہشہ سے پوچھنے کا سوچ کے وہ تیزی سے اس کے بھیجے گئے تحفے دیکھنے لگی۔ آج تک تحفوں کی اس قدر خوشی نہیں ہوئی تھی جتنی میرال شاہ کو اس وقت اس کے بھیجے گئے تحفوں کو دیکھ کے ہو رہی تھی۔ اس کے تمام تحفے پٹھان کلچر سے ریلیٹڈ تھے، سارے کپڑے پٹھانی فراک کی طرز کے تھے، جیولری میں ہر طرز کی ماتھا پٹی اور خوبصورت سی جھمکیاں تھیں، ہر چیز بہت نفاست سے پیک کی گئی تھی۔ وہ ماتھا پٹیوں کو دیکھ کے خوش ہوتی، ان میں سے ایک اٹھا کے ایکسائٹیڈ انداز میں آئینے کی طرف بڑھی تھی، اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے سسرال سے اس کی عید آئی ہو۔ شاہ حویلی کی بیک سائڈ پہ اس وقت قربانی کی جا رہی تھی۔ عظیم شاہ ان سب جانوروں سے کافی اٹیچ ہو چکا تھا، انہیں قربان ہوتے دیکھ کے وہ کچھ اداس سا ہوا تھا، اسی لیے اپنی فیورٹ اونٹ اور اونٹنی کی جوڑی کے ساتھ مزید وقت گزارنے کے لیے اس نے ان کی
कुर्बानी ईद के तीसरे दिन करवाने का सोचा। सुरेश शाह उन सब से दूर खड़ा चेहरे पे मास्क लगाए कुर्बानी होते देख रहा था। जनाब से कुर्बानी के गोश्त की स्मेल भी बर्दाश्त नहीं होती थी, लेकिन कुर्बानी के मनाजिर देखना भी बहुत पसंद था। हवेली के बाकी मर्द हजरात भी यहीं पे कसाईयों के सर पे खड़े ये मनाजिर देख रहे थे। कुर्बानी का गोश्त बनते हुए देखना भी एक खूबसूरत सा और पुरसकून सा मंजर लगता था। दिल में एक अजीब सी खुशी की लहर दौड़ती थी। वो अल्लाह का लाख शुक्र अदा कर रहे थे कि उसने उन्हें इस काबिल बनाया था कि वो कुर्बानी की इस्तात रख सकें। बैक साइड की तरफ काफी गर्मी थी। बाहर खुली जगह पे कुर्बानी की जा रही थी। धूप से बचने के लिए ऊपर छत को कवर करने के लिए टेंट भी लगाया गया था। एयर कंडीशनर लगाए गए थे, लेकिन फिर भी गर्मी शदीद थी। काजिम शाह, अहान शाह, जुरेश शाह और अर्जिम शाह उस वक्त एक जैसी ड्रेसिंग किए सफेद कुर्ते के बाजू कोहनियों तक फोल्ड किए बेहद खूबसूरत लग रहे थे। उन चारों के नकूश के दूसरे से काफी हद तक मिलते थे। चारों पसीने से भीग रहे थे, लेकिन जब तक कुर्बानी नहीं हो जानी थी उन्होंने यहाँ से हिलना नहीं था, क्योंकि गोश्त बनते देख के दिल को बच्चों सी खुशी हो रही थी। कसाईयों को छुरियां चलाते देख के अपना भी दिल गोश्त बनाने का कर रहा था, लेकिन ये काम उनके बस से बाहर था। ईदी निकालो ईदी, जो मेरे शहजादे के लिए ईदी नहीं निकालेगा उसे खाना नहीं मिलेगा। अजीम शाह लानिया अंदाज में कमरे में मौजूद सबसे मुखातिब होता अजमेर शाह के गाल चूम रहा था। वो उस वक्त बैक साइड के बड़े से कमरे में मौजूद था, जहां उन सब के दोस्त इनवाइटेड थे। कुछ दोस्त जो कुर्बानी करके अभी तक फ्री नहीं हुए थे वो आने से माजरत कर चुके थे, जबकि बाकी ज्यादातर उन सब के दोस्त यहीं पे मौजूद थे। वो सब जो खाना शुरू करने वाले थे। अजीम शाह की आवाज़ पे सबने बेसाख्ता उसकी तरफ देखा। काजिम शाह अपने बेटे को चाचू की बाहों में खिलखिलाते देख के मुस्कुराया था। इधर आ मेरी जान, मेरी किस बहुत महंगी है। आजा सबसे पहले मुझसे ईदी वसूल कर, क्योंकि मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। मैं मजीद भूखा रहने का रिस्क नहीं ले सकता। अजीम शाह का दोस्त मिकाइल अजमेर शाह को उंगली से इशारा करते मसनूई मासूमियत चेहरे पे सजा के गोया हुआ था। छी छी अजमीर, इसे बताओ तुम इससे फ्री में भी किस्त ना लो। अजमीर जो गौर से मिकाइल की तरफ देख रहा था। अजीम शाह के जवाब देने पे वो खिलखिलाया था, जैसे उसकी सारी बातें समझ रहा हो। अजीम शाह के जवाब पे जहां मिकाइल का मुंह बना था, वहीं पे सबका छत फाड़ कहका गूंजा था। उन सब दोस्तों ने उस वक्त सफ़ेद शलवार कमीज पहनी हुई थी, यहाँ तक कि हाजी खान और शाह सवार शाह की शलवार कमीज का रंग भी कुदरती तौर पर उनसे मैच हुआ था। सबको खाना खाने दो। काजिम शाह ने होंठों पे उंगली रख के अजीम शाह और अजमीर शाह को खामोश रहने का हुक्म सादिर किया। बाप पे निगाहें पड़ते ही छोटे से अजमीर शाह ने कलकारियां मारना शुरू की थी। वो शायद उसके पास जाने के लिए मचल रहा था। ऐसे ही खाने दो, मीर की ईद निकालो सब। अजीम शाह ने सबको आंखें दिखाते हुए जवाबन अपना हुक्म सादिर करते सबसे पहले अपने सब दोस्तों की जेबें खाली करवाई थीं। फिर अहान और काजिम के दोस्तों की जेबें खाली करवाने के बाद वो जुरेश शाह के दोस्तों की तरफ बढ़ा था। काजिम शाह उसे ताज्जुब से देख रहा था। उन सब के दोस्त अजमीर शाह का छोटा सा हाथ चूम के उसे ईद मुबारक बोलते। उसके हाथ में अच्छे खासे पैसे थमा रहे थे, जो ज्यादा होने की वजह से अजीम शाह उसकी छोटी सी जेब में डाल के बाकी के खुद पकड़ा था। काश रयान लाला भी आ जाते तो कितना मजा आता उन्हें खाली करवाने का। अजीम शाह अफसोस से बोलता जुरेश शाह से मुखातिब हुआ। वो लोग कबीले के सरदार हैं, वहाँ खुद काफी मेहमान जमा होते हैं, उसका आना मुश्किल था। जुरेश शाह जो खुद रयान खान को मिस कर रहा था, मतवाजन लहजे में अजीम शाह की बात का जवाब दिया था। ओ, तो इस सूरत में आपके बाकी दोस्तों को फाइन हुआ चाहता है, क्योंकि रयान लाला तो आते तो जाहिर है अजमीर की छोटी मोटी ईदी तो ना देते। अब आपके बाकी के दोस्तों को चाहिए कि इनकी कमी पूरी करते हुए अपनी जेबों से डबल पैसा निकालें। क्यों मीर? अजीम शाह अपने नए ख्यालात का इजहार करता आखिर में अजमीर शाह की राय जान रहा था, जो खिलखिलाते हुए उसकी बात से मुत्तफिक दिखाई दे रहा था। चलो साले साहब अपने बहनों के भतीजे की ईद निकालें। अजीम शाह अपने तमाम लाला के घूरने की परवाह किए बगैर अब हाजी खान की तरफ बढ़ता अपनी शहद रंग आंखें टिपटिपा के गोया हुआ था। हाजी खान उसके बाजों से अजमीर शाह को पकड़ के अपनी गोद में बिठा के चूमता हुआ अपनी जेब से 100 रुपया निकाल के उसे थमाने लगा। मीर, अपने सर से वार के चाचू के साले को वापिस करो। अजमेर शाह उस वाहिद 100 रुपए के नोट को देख के दांत पीस के बोलता हाजी खान को घूरा था, जबकि बाकी सबका कहका बुलंद हुआ था। हाजी खान अपना चेहरा झुकाए मुस्कुराहट दबाता अजमेर शाह को 100 रुपया थमा रहा था, लेकिन अजमेर शाह उस नोट को थामने के बजाय परेशानी से उस 100 रुपये के नोट को देख रहा था। वो अभी उसे थामने के लिए परेशान ही था जब अजीम शाह की बात सुनते वो उस नोट को थामने के बजाय होंठ लटका के रोने की तैयारी पकड़ता हाजी खान की तरफ देखने लगा। इतनी कंजूसी की तवक्को नहीं थी तुमसे साले। अजमेर शाह का मुंह बनते देख के अहांशा सर चटक के इस्तेज़ाइया अंदाज में हाजी खान पे तंज करने लगा। अहांशा के तंज पे हाजी खान ने 100 का नोट वापिस से जेब में डाल के 50 का नोट अजमेर शाह के सामने किया था। जुरेश शाह को पहली बार हाजी खान की इतनी कंजूसी पे सदमा हो रहा था। वो कंजूस तो बिल्कुल नहीं था, तो फिर आज क्यों उसकी नाक कटवा रहा था।
अजमेर शाह जो 100 के नोट को देख के पहले रोने की तैयारी पकड़ा था, 50 का नोट देखते ही उसने बकायदा गला फाड़ फाड़ के रोना शुरू कर दिया। मतलब साफ था उसे ये दोनों नोट पसंद नहीं आए थे। हाय मेरा शहजादा, चाचू सदके आपके मेरी जान, तुझे तो गोद में उठाने के भी पैसे हैं, तो क्यों परेशान होता है? मुझसे सारे पैसे ले ले, लेकिन कंजूसों की गोद से निकल के मेरी बाहों में आ जा। अज़ीम शाह उसे रोते देख के ड्रामेटिक अंदाज में गोया होता उसे हाजी खान की गोद से पकड़ने की कोशिश करने लगा। जब वो उसे घूर के देखता उसका हाथ दूर कर गया। काजिम शाह तासुब से अपने छोटे भाइयों और ड्रामेटिक बेटे की तरफ देख रहा था, जो आंसुओं के बगैर गला फाड़ फाड़ के रो रहा था। मेरा बच्चा, मैं मजाक कर रहा था, सारे तुम्हारे हैं। हाजी खान उसके यूं रोने पे बौखलाता हुआ अपनी जेब से वॉलेट निकाल के 5,000 के तमाम नोट निकाल के अजमीर शाह के छोटे छोटे हाथों में थमाने लगा। इतने सारे नोट देख के अजमीर शाह की रूह को चैन आया था, जिसपे उसने रोना छोड़ के खिलखिलाना शुरू किया। बच्चे को खूब ट्रेन किया हुआ चाचू जान ने। अजमीर को यूं खिलखिलाते देख के काजिम शाह के दोस्त ने हंसते हुए हाँक लगाई थी, जिसपे सबका कहका गूंजा था। अज़ीम शाह ने सीने पे हाथ रख के सर को खम देते दाद वसूल की। हाय साला, तू बड़ा अमीर निकला। आई मीन मेरे साले साहब यानी मेजर साहब कंजूस बिल्कुल भी नहीं है, आई समझ। अपने पहले जुमले पे हाजी खान की शदीद घूरी पे अज़ीम शाह अपनी बात की तौसीह करता अब उसके हाथों से अजमीर शाह को पकड़ के उसके पैसे अपने हाथ में थाम चुका था, ताकि नीचे ना गिर जाएं। अभी तक सबसे ज्यादा ईदी हाजी खान से वसूल हुई थी। हाजी खान के बादशाह सवार शाह की जेब हल्की करने की बारी थी, जो अपनी जेब की तरफ हाथ ले जाने वाला था, जब अज़ीम शाह की बात पे उसने उसे दांत पीस के देखा था। मीर, ये एसएसपी साहब हैं, यानी इनका ताल्लुक पुलिस से है, जो पैसा देने के बजाय वसूलते हैं। सॉरी एसएसपी साहब, गलती से यहाँ ब्रेक लगा ली थी, चालान मत काटिएगा यार। अज़ीम शाह उसे छेड़ने की गर्ज से पहले अजमीर को मुखातिब करता, बाद में आंखें टिपटिपा के शाह सवार शाह को अंदर तक आग लगाता, सबको एक दफा फिर छत फाड़ कहका लगाने पे मजबूर कर गया। शट अप। शाह सवार शाह दांत पीस के अज़ीम शाह को झाड़ पिलाता अजमीर शाह का हाथ चूम के उसे पैसे थमा चुका था। अजमीर शाह का चेहरा इतने पैसे पकड़ पकड़ के खुशी से खिलखिला रहा था। हाय, मीर को इतनी सारी ईदी हो गई, जो वो चाचू के साथ हाफ हाफ शेयर करके 50-50 करेगा, है ना मीर? सबसे ईद वसूलने के बाद अज़ीम शाह उसके गाल के साथ गाल टिका के उसे बच्चों की तरह पचकारने लगा, लेकिन अज़ीम शाह को शायद उसकी बात पसंद नहीं आई थी, जिसपे उसने फिर से गला फाड़ फाड़ के रोते सबको कहका लगाने पे मजबूर किया था। पहला कहका हाजी खान का बुलंद हुआ था। अपने भतीजे की इस कदर कंजूसी पे अज़ीम शाह ने दांत पीसते हुए उसे आंखें दिखाई थीं, जो सबके सामने उसकी बेइज्जती कर रहा था। मीर भी सोच रहा है, जब मेरे बाप ने सबको डबल करके अपनी जेब से पैसे थमाने हैं, तो साले तो 50-50 करने वाला होता कौन है? आहाचा ने कहका लगाते हुए सबको अजमीर शाह के दिल की बात बताई थी। आहाचा के टुकड़ा लगाने पे माहौल मजीद ज़ाफ़रान बना था। जाहिर था भाई काजिम शाह ने अपने सर किसी का एहसान थोड़ी रखना था। उसने किसी न किसी तरीके उन सब के दोस्तों को या उनके बच्चों को डबल करके ईदी तो थमानी थी। हुई खुशगवार से माहौल में कुछ देर तक सब खाना शुरू कर चुके थे, सवाए काजिम शाह के, जिसका बेटा उसे कुछ खाने नहीं दे रहा था। वो जब भी नवाला मुंह में डालने लगता वो रोना मचा देता। वो शायद उसके साथ खेलना चाह रहा था। काजिम शाह भी अपनी भूख साइड करता अब अपने बेटे के साथ मसरूफ उसके गालों पे प्यार से दांत काटने लगा। वो सब अब लिविंग रूम में मौजूद हाजी खान के साथ थोड़ी बहुत गपशप लगा रही थी। हाजी खान के इतराफ में उसकी दोनों बहनें नजरें झुकाए बैठी हुई थी। हारून शाह के साथ सोफे पे बैठा आहान शाह मुसलसल गुलाली पे अपनी निगाहें जमाए हुए था। काजिम शाह अपने बेटे को अपनी गोद में बिठाए इजल शाह के साथ बराजमान वक्फे वक्फे से हाजी खान से कुर्बानी के मुतालिक बातें कर रहा था। इजल शाह, जिसने सुबह कमरे में काजिम शाह के लिए साड़ी ज़ेब-ए-तन करके अपनी नाजुक जान पे रिस्क लिया था, वो उस वक्त लाइट पर्पल फ्रॉक पहने, सर और वजूद पे अच्छी तरह से दुपट्टा ओढ़े, हाथ में सोने की चूड़ियां पहने बेहद खूबसूरत लग रही थी। काजिम शाह आज सुबह से जिस कदर थक चुका था, वो अपनी सारी थकावट अभी और उसी वक्त उसके नाजुक वजूद पे उतारना चाहता था, लेकिन मेहमानों को वक्त देना भी ज़रूरी था। तमाम मेहमान जा चुके थे, सवाए हाजी खान के, जिसे रात के खाने खाए बगैर किसी ने जाने नहीं देना था। जुरेश शाह और मिरहा शाह एक सोफे पे बराजमान थे। जुरेश शाह बात में हिस्सा डालते हुए वक्फे वक्फे से हाजी खान को जिज करना जैसे अपना फर्ज समझता था। उसकी कोड वर्ड्स में की गई ज़ोमानी बातें आहान शाह, काजिम शाह और हाजी खान के अलावा कोई नहीं समझ पा रहा था। अज़ीम शाह यहाँ नहीं था। अगर वो यहाँ होता तो अपना हिस्सा डालना फर्ज समझता। जोहरा माम और दरिया शाह
एक सोफे पे, जबकि आदिल शाह और शाह बीबी अलग सोफे पे थे। लिविंग रूम काफ़ी बड़ा था, उसमें उससे डबल लोग भी समा सकते थे। वो लोग अभी बातों में मसरूफ़ थे जब मीराल शाह लिविंग रूम में दाखिल होती। एक नज़र हाजी खान पे डाल के निगाहें घुमाती भी सिंगल सोफे पे बैठ चुकी थी, क्योंकि बाकी डबल सीटर सोफों पे कपल्स मौजूद थे। वो उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। हाजी खान जो अहान शाह की किसी बात का जवाब दे रहा था, मीराल शाह को यहाँ देख के वो बात दरमियान में छोड़ता उसकी तरफ देखने लगा, लेकिन फिर अगले ही पल अपनी निगाहें उस पर से फेर गया। वो उसे देखते ही अपनी बात भूल चुका था। वो उसके दिए गए लिबास के बजाय शाहसवार शाह के तोहफे में दिए गए लिबास में मलबूस थी। हाजी खान ने उसका हर व्लॉग देखा था। उसने कल रात में ही तो अपने तमाम दोस्तों के दिए गए तोहफे तहाइफ सोशल मीडिया पे दिखाते, साथ साथ उनके नाम बता के अपने दोस्तों का शुक्रिया अदा किया था। हाजी खान को अच्छी तरह से याद था उसे ये लिबास शाहसवार शाह ने दिया है, क्योंकि बाकी सब दोस्तों की तरह शाहसवार शाह ने भी उसे एक दरमियानी सी टोकरी में ईदी भेजी थी, जिसमें से एक एक चीज़ निकाल के मीराल शाह ने स्पेशली कैमरे में दिखाई थी। हाजी खान का मीराल को देख के बाद भूल जाना काजिम शाह, अहान शाह और जुरेश शाह के साथ साथ लिविंग रूम में दाखिल होते अज़ीम शाह ने भी बगौर नोट किया था। अज़ीम शाह एक नज़र सब पे दौड़ा के हाजी खान की बाएं साइड पे बैठी जायशा खान को गहरी निगाहों से देखता अहान शाह के साथ जाके जगह बना के बैठ चुका था। खुद पे किसी की गहरी निगाहों की तपिश महसूस करती जायशा खान की निगाहें बेसाख्ता सामने की तरफ उठी थीं, लेकिन वो उसके देखते ही अपनी नज़रों का जाविया बदल गया। जायशा खान के हलक में आंसू का गोला सा अटका था। वो फिर से निगाहें झुका गई। हमें चलना चाहिए, काफ़ी रात हो रही है और कल आप सब खान मेंशन में इनवाइटेड हैं। हाजी खान संजीदगी से बोलता सोफे से खड़ा हुआ था। ऐसे ही चलना चाहिए, रात का खाना लग चुका है, मैं आज किसी सूरत तुझे खाना खाए बगैर जाने नहीं दूंगा। जुरेशा उसके करीब आता न रूठेपन से बोलते उसका बाजू खींच के उससे लिए डाइनिंग रूम की तरफ बढ़ चुका था। बाकी सब भी उन दोनों को देख के हंसते मुस्कुराते हुए डाइनिंग रूम की तरफ बढ़े थे। कहाँ जा रहे हो, खाना खाओ बैठ के। अज़ीम शाह को डाइनिंग रूम के बजाय ऊपर सीढ़ियों की तरफ बढ़ते देख के मीराल शाह ने उसे बेसाख्ता बुलंद आवाज़ में पुकारा। मीराल शाह के यूं मुखातिब करने पे जायशा खान ना चाहते हुए भी मुड़ के उसकी तरफ देखने लगी। भूख नहीं है आप ही, थक गया हूँ, बात लेने जानो, फिर कुछ देर सो जाऊंगा। अज़ीम शाह खुद पे जायशा खान की निगाहें महसूस करता अपने शहद रंग बालों में हाथ फेर के मीराल शाह को जवाब देता ऊपर की तरफ बढ़ चुका था। जायशा खान की अब्बा सो रही थी, आंखों में मोती झिलमिल करते आरज़ों पे बहने को बेताब थे। जायशा खान अब की बार अपने आंसू रोक नहीं पाई थी। वो मीराल शाह से अपने आंसू छुपाती तेजी से डाइनिंग रूम की तरफ बढ़ गई। रात का खाना खुशगवार माहौल में खाया गया। मीराल शाह खुद पे वक्फे वक्फे से उसकी नज़रें महसूस कर रही थी। वो उसके बिल्कुल सामने कुर्सी पे बराजमान थी। उसकी निगाहें कब से खुद पे महसूस करती। मीराल शाह ने निगाहें उठाई, नज़र भर के उसकी तरफ देखा। वो उसके देखने पे आंखों में नाराज़गी लिए बच्चों की तरह रुख मोड़ गया। उसके रुख मोड़ने पे वो अपनी मुस्कुराहट दबाती अपना ध्यान खाने की तरफ मरकूज करने वाली थी, जब उसकी निगाहें उसकी चौड़ी कलाई में मौजूद घड़ी की तरफ उठी थी। मीराल शाह स्टिल हुई। उसे अच्छी तरह से याद था ये वॉच उसकी दी गई है। वो उसके तोहफे में दी गई वॉच अपनी चौड़ी कलाई की जीनत बनाए हुए था। मीराल शाह का दिल खुशी से मचल उठा था, लेकिन चेहरे के जाविये नॉर्मल थे। मुझे गुलाली को अपने साथ लेके जाना है। मैं चाहता हूँ वो कल ईद का पूरा दिन हमारे साथ गुजारे। टिशू के साथ हाथ साफ करता हुआ हाजी खान एक नज़र उन सबको देखने के बाद मुस्कुरा के गुलाली की तरफ देखते गोया हुआ था। हाजी खान की बात पे जहाँ गुलाली का चेहरा खिला था, वहीं पे गुलाली के साथ बैठे आहाजा का चेहरा बुझ चुका था। ये कल हमारे साथ आ जाएगी। आहाजा ने खाने से हाथ खींचते हुए हाजी खान को जवाब दिया। गुलाली ने चौंकते हुए उसकी तरफ देखा था। आहाजा के जवाब पे हाजी खान ने खामोशी से गुलाली की तरफ देखा। अंदाज सवालिया था। वो गुलाली की राय लेना चाह रहा था। मुझे आज ही जाना है लाला, मैं चादर लेके आती हूँ। गुलाली एलानिया लेकिन मसरूफ अंदाज में बोलती अपनी कुर्सी से खड़ी हुई थी। बाकी सब खामोशी और संजीदगी से उनकी तरफ देख रहे थे। मेके जाना उसका हक था, वो उसे रोक नहीं सकते थे। उसके डाइनिंग रूम से बाहर निकलने पे आहाजा कुछ मिनट बाद संजीदगी से अपनी कुर्सी से खड़ा होता बाहर की तरफ बढ़ चुका था। उसके कदम अब ऊपर सीढ़ियों की तरफ थे। हाजी खान की निगाहें बेसाख्ता मीराल शाह की तरफ उठी थी, जिसकी नज़रें अभी तक उसकी चौड़ी कलाई में पहनी गई घड़ी की तरफ थी। मुझे तुमसे मिलना है। हाजी खान अपनी जेब से फ़ोन निकाल के मीराल शाह को एक छोटा सा टेक्स्ट करता पानी का ग्लास हलक में उंडेलने लगा। मीराल शाह जिसके हाथ के बिल्कुल पास उसका फ़ोन पड़ा था, हाजी खान का मैसेज नोटिफिकेशन से पढ़ते हुए उसके होश उड़े थे। ये पहली बार था जो वो यूँ उससे मिलने की फरमाइश कर रहा था। खाना खा लिया तो बाहर वॉशरूम में हाथ धोओ। हाजी खान को बार बार टिशू से अपने हाथ की चिपचिपाहट साफ करते देख के काजिम शाह नरमी से बोलता अपनी गोद में बैठे अजमीर शाह का सर चूम रहा था। हाजी खान जिसे पहले ही यहाँ से निकलने का मौका चाहिए था, काजिम शाह के मुखातिब करने पे हामिद सर हिलाता बाहर की तरफ बढ़ा। बाकी सब हनूस खाना खा रहे थे। हाजी खान ने खाना खाया नहीं बल्कि सिर्फ टेस्ट किया था, इसीलिए वो जल्दी फारिग हो चुका था। बेटा खाना खाओ, देखने के लिए थोड़ी है।
ظاہشہ خان کو کھانے کے بجائے صرف چاولوں میں چمچ گھماتے دیکھ کے زریش شاہ نے نرمی سے اسے مخاطب کیا، جس پہ وہ بوکھلاتی ہوئی جلدی سے ہمیں سر ہلاتی کھانے میں مصروف ہوئی، نگاہیں یہاں وہاں گھما کے دیکھا تھا لیکن وہ یہاں نہیں تھا۔ ظاہشہ خان کا دل بار بار بھر رہا تھا، اگر تو تمہیں لگ رہا ہے میں تمہیں فلرٹ کرنے کے لیے بلا رہا ہوں تو تم غلط سوچ رہی ہو، مجھے صرف چند باتیں ڈسکس کرنی ہیں۔ کیا ہم 5 سے 7 منٹ کے لیے مل سکتے ہیں؟ میرال شاہ جو لاپرواہی سے کھانا کھا رہی تھی، میجر خان کا میسج پھر سے موصول ہونے پہ وہ دانت پیستے ہوئے سب کو ایکسکیوز کرتی فون جان بوجھ کے کان کو لگائے باہر کی طرف بڑھی۔